چلی گئی. میرے امام میدان کربلا 2 محرم کو پڑاؤ ڈال دیے, 7 کو پانی بند ہوا, جگرنا کی رات آئی, سب اپنے اپنے خیمے میں ہے, رات جگرنا کا ہے, یزیدیوں کا پہرا سخت ہے, نارے فرات میں پانی چمک رہا ہے, علی حیدر کرار کے گھر کے بال بچے پانی سے تڑپ رہے ہیں, دنیا حیرت میں ہے. میرا امام خیمے میں جاگتے ہیں, کیا دیکھا کہ بی بی شہر بانو ہے, قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, بی بی زینب ہے, قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, بی بی سکینہ ہے, زمین پہ بیٹھی ہے, ام رباب ہے, قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, دختر مسلم ہے, قرآن پڑھ رہی ہے, زین العابدین ہے, قرآن گنگنا رہے ہیں, علی اکبر ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, قاسم ہے, قرآن پڑھے جا رہے ہیں. میرا امام فرماتے اے بہن زینب تھوڑی دیر سو جا بہن, 3 دن ہو چکا ہے کسی نے تم لوگوں نے پانی تک نہیں پیا بہن, اتنی رات جاگ کے قرآن پڑھے گی بہن, حلق سوکھ جائے گا, اے بہن تھوڑی دیر سو جا. امام حسین کی بہن سیدہ زینب آگے بڑھتی ہے, فرماتی بھائی جان آج کربلا میں سونے کی رات نہیں ہے بھائی, آج جگرنا جاگنے کی ہے, کل 10ویں محرم ہوگا, یزید نکارہ بجائے گا, آپ سے ہاتھ مانگے گا, ہاتھ نہیں دیں گے تلوار چلے گی, ہاتھ نہیں دیں گے بیٹا کٹے گا, ہاتھ نہیں دیں گے بھتیجا کٹے گا. اے بھائی جان آج رات نہیں سوئیں گے, قرآن پڑھ کے رات بتائیں گے, تاکہ جگرنا کے نام پہ نانا کی امتی کی عورتیں اسی رات کو جاگے گی, اور کربلا کا زینب کا پڑھا ہوا قرآن کو یاد کر لے گی, تو کل ماں فاطمہ کے چادر میں چھپنے کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید اعظم کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ سبحان اللہ. میرے امام کی بہن ہے, 3 دن کی بھوکی پیاسی ہے, میدان کربلا ہے, چاروں طرف دشمن ہے, پردیش وطن ہے, زمین بھی گرم ہے, تنہائی سائیں ہے, پورے الگ اعلان ہے, لیکن میرے امام کی بہن ہے, ان کی بیویاں رات بھر قرآن جگرنا کی رات کربلا میں جاگ کے پڑھ رہی ہے, تاکہ نانا کی امتی اسی عورت کسی نام پہ جاگے گی, اور جو قرآن پڑھے گی, وہ جو اگر بیٹا قرآن پڑھے گا, کسی کے گھر کے بیوی قرآن پڑھے گی, تو کربلا کا شہر بانو یاد آئے گا, گھر کی بہن قرآن پڑھے گی, کربلا کا زینب یاد آئے گا, تیری بیٹی قرآن پڑھے گی, کربلا کا سکینہ یاد آئے گا, تیرا بھائی قرآن پڑھے گا, کربلا کا علی اکبر یاد آئے گا, تیرا بھتیجا قرآن پڑھے گا, کربلا کا قاسم یاد آئے گا, تیرے بچے قرآن پڑھیں گے, علی اصغر یاد آئے گا, کمزور قرآن پڑھے گا, زین العابدین یاد آئے گا, آپ قرآن پڑھو گے, امام یاد آئے گا, گھرانہ قرآن پڑھے گا, کربلا یاد آئے گا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مسلمانوں امام حسین نے جگرنا کی رات میں کربلا کے میدان میں اپنے تمام پریوار کو بٹھا لیا, بیوی کو بٹھایا, بچے کو بٹھایا, بھتیجا بٹھا, کہا کہ سنو یزید میرے خون کا پیاسا ہو چکا ہے, یہ صبح تلوار چلایا گیا, یزیدی لوگ چاروں طرف گھیر لیا ہے, پانی بند کر دیا. اے بیوی شہر بانو تم ایسا کرو, بال بچوں کو لے کے مدینہ چلی جا. کس نے کہا؟ میرے امام نے. کب کہا؟ جگرنا کی رات میں. امام حسین کی بیوی نے کہی سنیے میرے سرتاج, اس مصیبت کی گھڑی میں آپ کو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے, دنیا قیامت تک کوئی شوہر اپنے بیوی پہ وشواس نہیں کرے گا. یہ میدان کربلا میں امام حسین کی بیوی نے اپنے شوہر کو دشمنوں کے بیچ میں چھوڑ کے چلی گئی تھی. اے میرے سرتاج آج کربلا سے یہ پیغام دیں گے کہ وفادار بیوی وہی ہو سکتی ہے جو بیوی شوہر پر مصیبت آ جائے اور وہ بیوی بن کے اپنے شوہر کے قدموں میں جان دے دے. آج کی بیوی کرے گی؟ نہیں کرے گی. کربلا میں زین العابدین, کربلا میں شہر بانو رئیس زادہ بادشاہ کی بیٹی, ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی, مخمل میں سونے والی تھی, جھروکھے پر آنے والی شہر بانو جب امام حسین سے شادی ہو گئی تو کربلا کے تپتی ہوئی ریت میں سو کے بھوکی پیاسی رہی, اور کہا میرا سرتاج بیوی وہی وفادار ہوگی جب شوہر پہ مصیبت آئے وفاداری کرتے جان دے. آج ہم لوگ کی بہو بیٹی کیسے نہیں کر پائے گی. 3 دن کھاٹی پکڑو, 3 دن, ایک دن گرم پانی دے گا, دوسرے دن سسوم, تیسرے دن ٹھنڈا, چوتھے دن بول کیا مر گئے ان کی لگے لے نہیں تو کھٹی ہم 3 دن سوتی دیکھیے گا. قسم خدا کی جوڑ سے کھاوی نے بلی نہ تھوکی جب رکھ تھو واہ رے بیوی. لیکن یہاں سگا پڑے میں سی بہو بیٹی نہیں ہے, یہاں بیوی سب دودھ کے دھول ہے.
क्योंकि इसको क्या पता है कि शोहर क्या चीज है। आजकल तो शोहर बीवी में फेटा फेटी, जाबो जाबो बाजार। अभी ईद में इमसाल ईद में एक लड़का अपनी बीवी ला के साड़ी दिया, तो बीवी तो बाजार नहीं गई, वो बेचारा खरीद के ला के दिया। बीवी उल्टाई पुलटाई, इधर से उधर देखी, बोल जेर यहाँ से लुगवा तो ही पी। हमने पी, उसका शोहर कहा के मौत बटन लुगा किरपिन देखो। बता, ये कनीजे फातिमा, अरे फातिमा के साथ वो साथ थी, एक कपड़ा रखती थी, 12 पवन लगाती थी। अली हजरत हसन हुसैन के बाबा फरमाते फातिमा कुछ ला दूं, बीबी फातिमा फरमाती नहीं मेरे सरताज, कपड़े में 12 पवन लगाने दो, तब कपड़े को पुराना समझूंगी, इसी कपड़े में सजदा करेंगे। अरे सजदा मोती से ज्यादा चमकदार। आजकल की औरतें तो नमाज भी नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती। मर्द जुमा पढ़ता है, वो भी जान के धक में। मर्द भी जुमा पढ़ता है, औरतें तो मुसलमान नमाज। अच्छा, आपके यहाँ कितने नमाजी होंगे? इमाम साहब कौन है? कितने नमाजी होंगे? 3 गो 4 गो 5 गो। वटो बढ़िया मौसम रहेगा तो बादल छा गया 3 गो, पड़ गया तो 2 गो, गरज दिया तो 1 गो, मलक दिया तो 1 गो। इमाम साहब जीन लगन ठेड़ुआ। बताइए, नमाज की कमी है। मस्जिद तुम आलीशान बना दो, लेकिन नमाजी नहीं तो मस्जिद आपको बद्दुआ देगी। खपड़ा मस्जिद रहे, खपड़ा, और नमाजी रहे तो वही मस्जिद आपको दुआ देगी। आका अल्लाह ये नहीं कहेगा तूने मार्बल टाइल से क्यों नहीं लगाया था, अल्लाह ये कहेगा तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी। आजकल मार्बल टाइल से एसी बना दिया, नमाज ही नहीं। जुम्मा पढ़ने हफ्ता में 1 दिन जाता है, वो भी अपने से नहीं जाता है, बीवी समर्थन देती है, बेटी समर्थन देगी तब जुम्मा मर्द पढ़ेगा, वरना नहीं पढ़ता। बेचारी जुम्मा दिन बीवी, आज जैसे सुबह जुम्मा है, अभी ऐसे सबको चिंता लगल है। सुबह उठेगी 9 बजते बजते शोर के लुंगी कुर्ता खोज के फींच के सूखने दो, गमछी खोज के ला के रख दो, टोपी जुगाड़ कर दो, लोटा पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाएगा। 2 रिकत नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान। एक जगह तक कुर्ता पजामा पहन लिया, और बीवी कहता टोपिया कहाँ, टोपिया 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 गेले, तब हफ्ते में आ लिया टोपिया। अब बीवी बेचारी परेशान, खोजते खोजते टोपी नहीं मिली। उसका शोहर बढ़िया समेट के कल जुम्मा पढ़िया दे तक बात थोड़ा बता, ये कौन जुम्मा रे बा, ये लोग ये समटा समटी वाला, ये फेटा। अरे नमाज वो हो तो इसके खुदा, इसके मुस्तफा खौफे खुदा हो, मस्जिद में पहुंचोगे, सजदा करोगे, दुआ करोगे, अल्लाह भी राजी होगा। अल्लाह वाला सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, सरजमीन सुगा पहाड़ी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। आधा घंटा मेरे पास टाइम बचा, जो करवाना आधा घंटा, 1 घंटा से 1 मिनट ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आधा घंटा हो गया है, मैं 11:54 में खड़ा हुआ, 4 मिनट बाकी था 1 बजने में, 12:54 और 1:26 हो गया। आधा घंटा सुनिएगा। नहीं भैया, वो दिन चला गया जब जवानी थी। ये जो जीट जाट देखते हैं, जान के धक अंदर से खत्म। अब वो जवानी नहीं रही। जिधर चलते थे तो लोग मुर्गी जब करता था कुर्तुए जब कर देते थे, है ना। माशाअल्लाह चाचा, उम्र में बरकतें आता हो ने लिए मन करो चाचा, लेकिन की करबो 10 टका चक्कर 100 टका दिए ना, मोहब्बत है। बहुत अच्छा सुन रहा है मिनाज बाबू, बहुत मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा है। अरे आज तो परसों करता है ना, करबला पे जो किए थे, बारिश हो रही क्या, पानी पड़बो करता तो खत्म नहीं दिखा। बोले हजरत पानी पड़ता नहीं, दुआ कर दीजिए हजरत, पानी पड़ेगा। के लिए दवा नहीं करी पर उतर खेते पटे दो, दवा में कोई असर नहीं हो, खेते पटे दो की लिया। अब
रही बात के दवा में कैसे असर रहेगा? ATM के पैसा, जुआ के पैसा, चोरी के पैसा, है ना, हेरा फेरी के पैसा, तिलक के पैसा मोहल्ला इमाम को खिला देता है। अभी अगला जुमान दवा करने सब हम लोग घुसे 12 देख लीजिए टोपदरिया हजरत क्या हुआ? कल ATM के पैसा, चोरी के पैसा, जुआ के पैसा, बदरिया उड़ जाता कि कल से खेतो उड़ जाता। आप लोग गलत कीजिएगा तो असर, अरे अल्लाह रज़ाक है, पानी पड़े या ना पड़े इससे मतलब नहीं, रिस्क का मालिक रब है। चाहे अल्लाह पानी बरसा के रोजी दे, चाहे सूरज की रोशनी तपा के रोजी दे, तेरा काम है सुबह को उठना, वजू करना, टोपी पहनना, मस्जिद आना, सजदा करना, जमीन पे फैल जाना, रिस्क का मालिक रब है। 4 गो टोपरी है, वह टाइम परेशान, खेत क्या है? कुछ नहीं, अल्लाह रज़ाक है। हाथी घर जोते देख ले, हाथी को हर जोते, इतना बड़ा बड़ा पेट है, हाथी तो पूरा कमाना चाहिए तब पेट भरता, लेकिन हाथी कुछ नहीं करता फिर भी पेट भरता। मगरमच्छ इतना बड़ा बड़ा वो कभी काम करता, उठा कैसे पेट भरता? समुद्र में इतनी बड़ी मछली अल्लाह ने पैदा किया। जब अल्लाह ने पैदा किया है तो दाना पहले आना बाद में, दाना जमीन पे पहले आना बाद में। अब पानी मत देखो, खेत मत देखो, अल्लाह रज़ाक है, कुदरत बड़ी है। चाहे वो पहाड़ पे जब चिड़ियों को रोजी दे सकता है तो इंसान को दाना क्यों नहीं? तो मेरे इमाम मैदान करबला गए नहीं थे, बुलाए गए थे। अपने बेटे को दुल्हा बनाया, घोड़े पे बैठाया, आगे बढ़ाया, तलवार थमाया। इमाम हुसैन का बेटा यजीदियों से लड़ते गए, यजीद भागने लगा, दहशत में आ गए सब। यजीदी घबरा गया। शेर खुदा का शेर, शबीह मुस्तफ़ा, नबी का नवासा आके मैदान में उतरा है। ऐसा चेहरा है वो बहु रसूल का चेहरा। अली अकबर इमाम हुसैन के साहबजादे आगे बढ़ा, तलवार लिया, तलवार चलने लगी, यजीद भागने लगी, तलवार चलने लगी, यजीदियत घबराने लगी, तलवार चलने लगी, यजीद में हड़कम मच गया। इमाम हुसैन के बेटे तलवार चलाते गए, चलाते जब थक गए घोड़े पे रुक गए। इमाम फरमाते मेरे लाल आगे बढ़, तू बढ़ेगा तो कुरान बढ़ेगा, बेटा आगे बढ़, तू बढ़ेगा नाना की शरीयत बढ़ेगी, बढ़। इमाम हुसैन के बेटा अली अकबर 18 साल का जवान बेटा घोड़े को मुड़ता है, ऐसे ऐसे अपने बाप के सामने आके खेमे के बगल में खड़ा होता है। इमाम फरमाते मेरे लाल उधर से वापस क्यों आ गया? कहा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा हूँ बाबा, इतना हल्का सूख चुका है तलवार चलाते चलाते बाबा, अब तलवार चलाया नहीं जाता। काश मेरे हलकों में चंद कतरा पानी का कतरा होता बाबा, इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। 3 दिन से भूखा प्यासा तलवार चलाते चलाते धूप में थक चुका हूँ बाबा, सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। गौर करो सुबह पढ़ी के नौजवानों, 18 साल का जवान बेटा 56 साल के बाबा हुसैन के सामने जब मैदान करबला में कहा होगा बाबा फल इतना सूख चुका है कि कांटा हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, 56 साल के बाप को कैसा लगा होगा मैदान करबला में। मेरा इमाम फरमाते ए मेरे लाल मैं भी 3 दिन से कुछ नहीं पिया न खाया बेटा। कहा बाबा मैं पानी नहीं मांगता बाबा, मैं अपनी शिकायत क्यों करता हूँ कि मेरा हल्का सूखा है बाबा, सांस लेने में अब तकलीफ हो रही है। इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल तूने खेमे में नहीं देखा बेटा, 3 दिन से मशकीजा सूखा पड़ा है बेटा, तेरी बहन सकीना जमीन में सो के सिसक रही है बेटा, तेरा भाई अली असगर एड़ी रगड़ रगड़ के जुबान बाहर निकाल रहा बाबू, तेरे फूफू सैयदा ज़ैनब गम में डूब चुकी है बेटा, तेरी माँ शहरबानों के आंख से आंसू सूख चुका है बेटा। इमाम हुसैन के साहबजादे मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन में दुश्मन के बीच में इमाम हुसैन के बेटे ने कहा था बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए बाबा,
हल्का सूखा है। मेरे इमाम फरमाते ए मेरे बेटे तू मेरे करीब आ जा। बेटे करीब आता है। इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़ा है, चारों तरफ यजीदी लोग देख रहा है कि दोनों बाप बेटा क्या कुछ बोल रहा है, क्या मशवरा कर रहा है। गौर करो, मशवरा नहीं। मेरा इमाम फरमाते आ बेटा मेरे करीब आ। इमाम हुसैन के साहबजादे करीब आते हैं। आने के बाद अपने बाप के सामने खड़े होते का बाबा मैं बिल्कुल करीब आ चुका हूँ। इमाम हुसैन फरमाते बेटा अपनी जुबान से मेरी जुबान को चूस लो। गौर करो जुगा पड़ी वाला, जब जवान बेटा बाप की जुबान को चूसता होगा उस बाप को कैसा लगा होगा। मेरा इमाम फरमाते बेटा थोड़ी देर जुबान चूस ले। बाप भी 3 दिन से पानी नहीं, बेटा भी पानी नहीं, जुबान चूस रहा है। इमाम हुसैन के साहबजादे फरमाते मेरे लाल मेरी प्यास, माशाअल्लाह मेरे लाल मेरी प्यास थोड़ी थोड़ी बुझ रही है बेटा। कहा कि बाबा थोड़ी देर और पी ले, चूस ले, थोड़ी देर और बेटा चूस ले। फिर कहा बेटा बोल अब कैसा लगा। कहा बाबा बिल्कुल प्यास बुझने के करीब हो गई। कहा बेटा थोड़ी देर और चूस ले। गौर करो मुसलमानों, 56 साल के बाप की जुबान को 18 साल का जवान बेटा क्यों चूस रहा था। नारे फरात में पानी चमक रहा था, हल्का सूख चुका था, प्यास तड़प रहे थे। इमाम हुसैन के साहबजादे फरमाते बाबा जुबान चूस लिया, प्यास बुझ गई, इतना कहना था। इमाम हुसैन फरमाते मेरे बेटे सुन, दुश्मनों के बीच में, परदेश वतन में, यजीदियों के बीच में, समी गरम में, 56 साल की उम्र में तूने मेरी जुबान चूसा है बेटा। और मैं 6 साल की उम्र में मस्जिद नबवी के सहन में नाना रसूलुल्लाह की जुबान को चूसा था बेटा। आज करबला में जबान तेरे बाबा हुसैन की है, लेकिन फैज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है, और करबला में तेरी प्यास बुझती नजर है। मुसलमानों गौर करो, आज मेरा बेटा है, उसी इस्लाम के नाम पे न जाने कितने अय्याशी कर लेते हो, मुहर्रम के नाम पे कितना डीजे डांस कर लेते हो, मुहर्रम के नाम पे कितना खुराफाती कर लेते हो। मैदान करबला में सब शहीद होने लगे। आखिरकार अली असगर की कहानी तो आपने सुना होगा, गोद में लिए शहर बानू फरमाती मेरे सरताज मैं ज़मीन पे सोई, शिकायत ने की मेरे बाबू को कम से कम चंद खतरा, लेकिन यजीदियों ने तीर चलाया मेरे इमाम हुसैन के साहबजादे। अली असगर अपने गोद में ही बाबा के गोद में दम तोड़ दिए। इमाम हुसैन ने सब्र किया। बीबी सोगरा को मदीने में छोड़ा, हुसैन ने सब्र किया। नाना के मज़ार को मदीने में छोड़ा, हुसैन ने सब्र किया। माँ के मज़ार फातिमा को मदीने में छोड़ा, हुसैन ने सब्र किया। खजूरों की झाड़ी को छोड़ा, हुसैन ने सब्र किया। गुंबद खजरा को छोड़ा, हुसैन ने सब्र किया। मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़ा, हुसैन ने सब्र किया। जवान बेटा शहीद हुआ, हुसैन ने सब्र किया। भतीजा शहीद हो गए, हुसैन ने सब्र किया। भांजा शहीद हो गए, हुसैन ने सब्र किया। भाई शहीद हो गए, हुसैन ने सब्र किया। पूरी दुनिया ने देख लिया कि मैदान करबला में सब्र एक तरफ, जुल्म एक तरफ। कुरान ने ऐलान कर दिया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है। जिसके साथ खुदा होता सारी खुदाई उसकी। एक चैप्टर और सुन लीजिए। 10वीं मुहर्रम जिस दिन हम लोग मेला में घूमते हैं, मेला में वो औरत नहीं जाती है, वो बहू नहीं जाती, वो बेटी नहीं जाती जो बहू बेटी यौम आशूरा का रोज़ा रखती है। सूगा पड़ी में बहुत औरतें हैं कि मेला खड़ा नहीं जाती है, क्योंकि वो रोज़ा रखती है। और रोज़ा रखेगी तो असर में नमाज कहाँ पड़ेगी, भूख प्यास में उसको अखाड़ा सुहाएगा, उसको मेला झमेला ठीक लगेगा नहीं। तो जब वो रोज़ा रखेगी, जितने औरतें बहू बेटियां रोज़ा रखने वाली कभी अखाड़ा मैदान में मेला देखने नहीं जाती है। वही औरतें आवारा गर्दी की तरह घूमती है, शोहर को छोड़ के कहाँ है कहाँ नहीं, कोई मतलब नहीं। दो गिदर बुथरू लिया, किसी और ने गोरी एगो हरा गेलो, एगो घुमुड़िया मार दिलो, एगो बेलूम फेर दिलो, एगो फेटी उल्टे दिलो। और माया बैठी पकौड़ी खाओ सुसुआ हो लागो डाकिन बैठल रहे लागो जिंदगी में पकौड़ी नहीं खाया। उफ गिदरुआ मांगो तल दिलो ठेक ठेक बस तू सगल क्यों मिर्चिया मांगो, मेरे देखो मिर्चिया हो, अरे बापा लागो बरियात याद।
अजब अजब मेहमान देखी ना। अरे बाप 5 गो 6 गो गुथरू ले लो, एगो घुमड़िया मार दे लो, एगो कने हरा उसका बाप उधर से पाले किधर नहीं बोली एगो नया पावायो मेला झमेला काम मेला एगो यहाँ है, आज यहाँ है, फलना है, आज चिलना है। औरतें जा रही है बेशर्म की तरह। बता क्या तुम्हारे है, क्या तुम यही करबला में इसलिए मेरे इमाम शहीद हो गए कि हुसैन के नाम पे बेपर्दा औरतें बहू बेटियां रोडों सड़कों पे घूमे? नहीं, अरे इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में शहीद हो गए, शहर बानू ने खेमे में से झांक तक नहीं देखी, खेमे से बाहर नहीं निकली। आज की वो बेटियां उसी नाम से मेला में घूमती है। 3 दिन बल 3 दिन मेलवा बल जाबो, उसका शोर कहता न जरा तो और बताया जने मान वो देना हो पे साधे लेकिन हमारे जुगुर है यहाँ सुगा पड़ी बहु बेटी ने, यहाँ सब बेचारी सब दूध के दो। इन बातों को रोको। हम लोग की बीवी आज तक चैलेंज है, कभी कोई मेला नहीं गई। इतने लोग हैं, कभी कोई दिखा सकते हो कि वहाँ झारखंड से आपको हमने रानीगंज में या पत्थर चपटी में या सारठ में आपकी बीवी के साथ देखे? नहीं। जो तरीका जो हम लोग बयान करते हैं उसको करते भी हो। क्यों जाएंगे? हाँ सब तो लेके, अरे वहाँ सारठ में जितने जाती है ना, बेस औरत नहीं जाती है। भूताही, खेपाही, पगलाही, एक सुरतियाही, नमाज रोजा भेंटने, थोड़ा सा यहाँ हिलने लगा, बोल मौलाना साहेब हमर कर्जिया खे गेलो, हम सार हट जाबो। कसम खुदा बोल भूत लगा है, झोला ले टेम्पू में दिलो छोड़। और वहाँ जा करके सारठ में सिंगाड़ा खाती है, वो भी चटनी मिला मिला के। तो भूता कसे जाने सिंगड़ों में चटनी मिला दे। सोच के देखिए, जब भूत लगा भूत झड़ेगा, चल जाना सिंगाड़ा में चटनी मिला के खाती है, तो भूत इतना इजवरिया कि सारठ में सिंगाड़ा खाएगा। ये भूत नहीं भूताही है। इनको कह दे कि घरों में रह, हिफाजत पर्दा कर, सजदा कर, कल मैदान महशर में बीवी फातिमा के चादर में छुपने को जगह। क्यों? शोहर अगर मजबूत रहे तो किसी, जब शोहर मजबूत रहेगा ना उसकी बीवी कभी भूत नहीं लगेगी। लुचुर कुचुर भूता रोज टेंट रोज है ना भूताला तो ये फेट सर भूत हवा करने जाते हैं। जबरदस्ती शोहर को बेवकूफ बना के चल दिया। 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता हाजिरी चलो, हाजिरी चलो। कसम खुदा की हम लोग पाए रहते। उसके बाद पूछते हैं वहां गए थे तो क्या कहा? पल चेयर को लगा लो, चेयर को। पल 3 गो गवा की को मौलाना साहेब यार गो हमर ससिए को ने कही हो तो ना वाह रे मानुस क्या दिमाग है। इसलिए खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। ए माँ बहने, तू फातिमा नहीं लेकिन करबला में इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को कुरान पढ़ाया था और ये पैगाम दिया था, ए नाना की उम्मती की औरतों, तुम अपने घरों में बेटियों को कुरान पढ़ा देना, और जब कुरान पढ़ाएगी तेरी बेटी सकीना नहीं कनीज़ सकीना जरूर बन जाएगी, ज़ैनब नहीं ज़ैनब का कनीज़ जरूर। मैदान करबला में सब शहीद हो गए। कब? 10वीं मुहर्रम जुमा के दिन में सब शहीद हो गए। और जब शहीद हो गए तो 4 दिन हो गए, पानी बंद किए हुए। चौथा दिन था, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के दोपहर में ये चौथा दिन था। 4 दिन तक करबला में किसी ने पानी नहीं पिया। गौर करो, इमाम हुसैन शहीद हो गए, अली अकबर हो गए, कासिम सब शहीद हो गए। 5 औरत बची थी करबला के मैदान में। एक इमाम हुसैन की बीवी, एक भतीजी कासिम की है ना, एक वकील की जो वकील है ना उसकी बेटी, तो उनकी बेटी 2, एक भतीजी
ایک بیٹی، ایک بیوی، ایک بہن اور ایک بیٹا، 5 عورتیں ایک زین العابدین میدان کربلا میں جمعہ کے دن میں 61 ہجری میں لڑائی ختم ہو گئی۔ عصر مغرب کا ٹائم تھا، سبھی لوگ یزیدی ڈھول بجا رہا تھا چاروں طرف خیمے میں، اس کونے میں ڈھول کی آواز، وہاں سے ڈھول کی آواز، وہاں سے ہو ہلا کی آواز، جشن فتح منا رہا تھا 10ویں محرم کو، جیسے ہم لوگ میلہ جھملم کو ہرا گوری ہو اللہ کرتے ہیں، یزیدیوں کا ہو بہو نقشہ وہی تھا، جشن فتح منا رہے تھے۔ اور امام حسین کی جو خیمہ تھا اس تمام میں آگ لگا دیا تھا یزیدیوں نے، ایک خیمہ میں سب کو جمع کر کے اسی میں رکھ دیا۔ امام زین العابدین 4 دن تک پانی نہیں پیا تھا، بخار سے اس قدر کرا رہے تھے، بخار میں پیاس لگتی زیادہ، حلقہ اتنا سوکھ چکا تھا کہ امام زین العابدین سانس آ رہا ہے جا رہا ہے پتہ نہیں چلتا تھا۔ زینب سینے پہ کان رکھ کے بار بار دیکھ رہی ہے، میرے لال آخری چراغ بچے ہو بیٹا، سانس تو لو۔ 4 دن کا جوان علی زین العابدین خیمے میں کر رہے، یزید ہی 10 محرم جمعہ کے دن یوم عاشورہ کو عصر مغرب کے بیچ میں جشن منا رہا، 4 دن تک کسی نے پانی تک نہیں پیا۔ اتنے میں ایک عورت دوڑے 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 خیمے کے اندر آئی، آواز دیتی ہے زینب السلام علیکم۔ زینب نے عصر مغرب کے ٹائم میں یوم عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو جب سلام کی آواز سنتی ہے، زینب کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتا ہے، آنے والی تو نے کربلا میں سلام کیا کیوں؟ تیرے بھائیوں نے، تیرے شوہروں نے، تیرے لوگوں نے ہمارے باپ بھائی بیٹوں کو بھتیجوں کو سب کو پکڑ کے گھیر کے بھوکے پیاسے شہید کر دیا، تو سلام کرنے والی کون؟ وہ عورت آہستہ آہستہ قریب آ جاتی ہے، نقاب سے چہرہ ڈھکی ہوئی ہے، سیدہ زینب شہر بانو سکینہ بیوی ام رباب دختر مسلم سب زین العابدین کے بغل میں بیٹھ کے ماتم میں ڈوب چکے ہیں۔ کربلا میں سائیں سائیں کی آواز آ رہی ہے، اندھیرا چھانے کے قریب عصر اور مغرب کے بیچ کا سورج کا نقشہ کیسا ہوتا، اسی عالم میں سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ عورتیں گھبرا رہی تھی، اللہ رات ہوگی تو کیا ہوگا، اب تو میرے سب شوہر چلے گئے، بھائی چلے گئے، بیٹے چلے گئے، اب یہ یزید میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، یہ سوچ سوچ کے زینب سوچ رہی تھی، گھبرا رہی تھی۔ وہ عورت قریب آتی ہے، اپنے نقاب کے پردے سے ایک سامان کو نکالتی ہے، زینب کے ہاتھ کی طرف بڑھاتی ہے، اے زینب ایک گلاس پانی لے کے آئی ہوں زینب، کربلا میں بیٹھ کے پی لے زینب، 3 دن ہو چکا ہے زینب، میں کربلا میں پانی لے کے کھڑی تھی زینب، ان یزیدیوں کا سخت پارا تھا زینب، میں اندر آ نہ سکی زینب، خدا کے واسطے بیٹھ کے کربلا میں ایک گھٹ پی لو۔ غور کرو سگا پڑی کے نوجوانوں، مسلمانوں، بہو بیٹیوں، 4 دن کے بعد ایک گلاس پانی کربلا میں پہنچا تھا، غور کرو 4 دن کے بعد پانی آیا تھا، منظر کیسا ہوگا؟ سیدہ زینب فرماتی تو کون؟ کہا میں نعمان بن بشیر کی بیوی ہوں، جو کوفہ کا پہلے گورنر تھا، ابن زیاد کو یزید نے مقرر کیا، میرے شوہر کو معزول کیا، عمر و سعد کی کمانڈری تھمایا، میدان کربلا میں لڑائی ہو گئی، شوہر بھائی تیرے چلے گئے، لیکن اے زینب میں اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوں زینب، بیٹھ کے تو کربلا میں آج اگر پانی نہیں پیے گی زینب، میں تیری ماں فاطمہ کو قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گی، اے زینب خدا کے واسطے ایک گھونٹ پانی پی لے۔ غور کرو مسلمانوں، سیدہ زینب وہ گلاس کے پانی کو اٹھاتی ہے، 4 دن کے بعد پانی دیکھتی ہے، دیکھتے دیکھتے ہونٹ کے قریب لے جاتی ہے، اتنے میں امام حسین کی بیٹی چھوٹی سیدہ سکینہ زمین میں سو کے سسک پڑی، جو سسک ان کے کان میں پہنچی، بی بی زینب نے پانی منہ سے ہٹاتی ہے، اپنی بھتیجی سکینہ کے پاس لے جاتی ہے، اے بیٹی تو چھوٹی ہے نا، تو پہلے پانی پی بیٹی، تجھے پیاس زیادہ لگی ہوگی بیٹی۔ سیدہ سکینہ کو ہاتھ میں پانی دیتی ہے۔ 4 دن کے بعد بی بی سکینہ امام حسین کی چھوٹی بیٹی 6 سال کی عمر میں کربلا میں ننھے ہاتھوں سے گلاس پکڑ کے کانپ رہی تھی، اس ٹھنڈے میں طبیعت ان کی خراب ہو رہی تھی، یتیم ہو چکی تھی، باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، بیٹی وہ پانی پکڑ کے ہونٹ میں سٹاتی ہے، سوچتی چلو 1-2 گھونٹ پی لیں گے، سانس لینے میں تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو ہی گلاس سیدہ سکینہ ہونٹ میں سٹاتی ہے، حضرت امام زین العابدین کی کراہٹ
आहट सैयदा सकीना के कान में आती है। गिलास मुंह से हटा के सैयदा सकीना फरमाती है, ए फूफू जान, ये पानी मुझे बाद में पिलाना, पहले मेरे उस भाई को पिला दे जो 4 दिन से खेमे में भूख से प्यास से कर रहा रहे। फूफू पहले मेरे भाई को पिला, एक ही चिराग बचा है फूफू, इनको बचा के रख फूफू। अब वो सैयदा ज़ैनब गिलास लेती है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास सूरज डूबने के करीब है, अंधेरा छाने वाला है, मैदान करबला का 10वीं मुहर्रम है, यौम आशूरा का दिन है, हव का माहौल है, सन्नाटा पसरने वाला है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को फूफू ज़ैनब उठा के बैठाती है, ए मेरे भतीजे, ए मेरे लाल, ले एक घोंट पानी पी ले। इतना सुनना था, सैयद ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, फूफू जान क्या मेरा बाबा पानी लेके करबला आ गए? इतना सुनना था, ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगा। कहा भा बेटा, अब तेरा बाबा करबला पानी लेके नहीं आएंगे बेटा, अब तेरा बाबा तो जामे शहादत पी करके नाना रसूलुल्लाह के गोद में बैठ के हौज़े कौसर पी रहा है। ए बेटा एक घोंट पी ले। गौर करो मुसलमानों, 4 दिन के बाद एक गिलास पानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में असर मगरिब के बीच में गिलास हाथ में होंठ के करीब ले जाते। जो ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन पानी पीने की कोशिश करते, गौर से सुनिएगा, पानी पीने की कोशिश करते, इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नजर अपनी माँ शहरबानू पे पड़ती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ए फूफू जान, अब ये पानी मुझको बाद में पिला, पहले मेरी माँ को दे दे फूफू, पहले उस माँ को पिला। गौर करो, एक गिलास पानी मैदान करबला में घूम रहा है, 4 दिन के बाद आया तो घूम रहा है। सैयदा ज़ैनब उस गिलास के पानी को ज़ैनब के शहरबानू के हाथ में देती है। बीबी शहरबानू कौन? इमाम हुसैन की बीवी शहरबानू मैदान करबला में बैठी पानी देखती है। देखते 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 चीखने लगी और रोने लगी, ज़ैनब ये पानी मेरे सामने से हटा दो ज़ैनब, ये गिलास का पानी मुझे मत दिखा ज़ैनब। जब जब मैं पानी का देखती हूँ ना ज़ैनब, मेरा अली असगर याद आता है जो बाप के गोद में दम तोड़ दिया ज़ैनब। जब मैं पानी देखती हूँ ज़ैनब, मेरा अली अकबर अपने बाप के जुबान को चूस चूस के शहीद हो गए। ए ज़ैनब गिलास मेरे सामने से हटा दो। जब जब मैं गिलास में पानी देखती हूँ ना ज़ैनब, मेरा 56 साल का शौहर इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे यजीदियों से लड़ते लड़ते जवान बेटा भतीजा का लाश ढोते ढोते शहीद हो गए। ए ज़ैनब अब बैठ के हम करबला में जिनका शौहर प्यासा जाए, उनकी बैठ के करबला में पानी कैसे पिएगी ज़ैनब? गौर करो मुसलमानों, 4 दिन के बाद एक गिलास पानी मैदान करबला में आया था। कभी ज़ैनब के हाथ में, कभी सकीना के हाथ में, कभी शहरबानू के हाथ में, कभी रुम्बाब के हाथ में, कभी दुख्तर मुस्लिम के हाथ में। दुनिया देख रही है। करे दुनिया वालों, अगर सब्र देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो तो करबला देख लो, तिलावत देखना हो तो करबला देख लो, सजदा देखना हो तो करबला देख लो, रुकू देखना हो तो करबला देख लो, रोजा देखना हो तो करबला देख लो, तस्बीह देखना हो तो करबला देख लो, प्रेम देखना हो तो करबला देख लो, भाई बहन की मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो, मियाँ बीवी की प्रेम देखना हो तो करबला देख लो, मामा भांजे की उल्फत देखना हो तो करबला देख लो, बाप बेटे की प्रेम मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया में जिंदगी गुजारना चाहते हो तो करबला देख लो। मिलके कह दो, शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, दियस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदात नादार, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बनाए ला इलाहा अस्तगफिर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीन सुगा पहाड़ी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर रात आती है, फिर रात आ जाती है, खेमे में लाश पड़ा रहता है। सैयदा ज़ैनब खेमे में जाग रही थी। 2 साया करबला में नमदार हुआ 12-1 बजे रात। किस दिन जैसे हम लोग मेला देख के जो रात में आके सोते हैं। सैयदा ज़ैनब कहती, आने वाले तू रुक जा, क्यों आ रहे हो?
اہل بیت کے گھرانے کی چند عورتیں بچی ہے جن کے گھر میں جبرائیل نہیں آتے تھے، ان کے گھر میں کوئی اجازت سے آج ان کے بہو بیٹیاں بے یارو مددگار میدان کربلا میں تنہا بیٹھ گئے۔ کہ آنے والے رک جا، آواز آتی ہے بیٹی زینب میں آنے والی تیری ماں فاطمہ ہوں بیٹی، تیرا بابا علی ہے بیٹی، میں دیکھنے لیے آئی ہوں اور تجھے کہنے آئی ہوں بیٹی کہ میرا بیٹا حسین کا امتحان 10ویں محرم کو ختم ہو چکا ہے، لیکن اے بیٹی تیرا امتحان یہاں سے شروع ہو چکا ہے۔ قتل حسین اسلم میں 2 بج گیا جی، ارے 2 بج گیا، وہی ہوتا ہے کربلا پر تقریر میری بہت اچھی یا بہت جیسے کہو، میں کربلا پر ٹاپک پکڑ لوں تو گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن ہوتا ہے کہ ہم لوگ ماتم والے نہیں ہیں، ہم لوگ غم والے نہیں، ہم لوگ آنسو والے نہیں ہیں، جن کا حسین مرا ہے